Okay, so please confirm I've started the screen sharing. So there is one concept that I missed out, that is boxing and unboxing. So what is this concept? Actually, we know that C sharp is completely object oriented. Okay, so suppose I write here int x is equal to 10. So if you observe from the memory allocation point of view, this this is considered as value type. I hope that part I have already covered in the session. तो ये जो x होगा वो क्या है, वैल्यू टाइप है. So value type variable is present over here on the stack and it will be like this 10. Let's say this memory block's address is say 100. Suppose I go ahead and create a variable that is object obj is equal to, suppose I am writing here x. If you remember, I told you every data type is inherited from object. Remember? याद है सबको? In C sharp, everything is inherited from object class, system.object class. So system.object is the parent class. And from this, every data type is inherited, whether it is integer or not. Integer भी उसमें से inherit होगा. तो अगर आप integer को typecast कर रहे हो, means what are we trying to do? We are trying to store x, that is a child class, into parent class. So this is a relationship. Upcasting है, याद है ना? So upcasting is implicit. This will happen naturally. तो इस केस में क्या होगा? अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस टाइप. When I say reference type, what is the meaning? Suppose we are writing here employee E is equal to new EMP. What do you understand by this statement? इसका memory allocation कैसा होगा? Where is E present? Stack पे होगा कि heap पे? E will be present on the stack, right? And this object EMP will be present on the heap and it will be like this. Let's say this address is 200. तो E के पास क्या रहेगा? 200 रहेगा. ये reference type हुआ. So object is reference type and you're trying to store value type into reference type. अगर कभी ऐसा सिनेरियो आता है जब हम वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में डालते हैं, तो इंटरनली सी शार्प क्या करता है, यहाँ पर देखो ओबीजे एक बनेगा. ओबीजे के लिए वो क्या करेगा, एक नया, यहाँ पर हमने एक्स बनाया ना, इट विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी ब्लॉक हियर लाइक दिस, और यहाँ पर वो 10 को कॉपी कर देगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओबीजे इज इक्वल टू एक्स लिखा हमने, तो एक्स क्या है, वैल्यू टाइप है, लेकिन आप उसको किस में डाल रहे हो, रेफरेंस टाइप में डाल रहे हो. सो व्हाट इंटरनली सी शार्प कंपाइलर विल डू, इट विल एलोकेट अ न्यू मेमोरी ब्लॉक ऑन द हीप, और ये जो 10 है वो इधर कॉपी होगा और उसका एड्रेस ओबीजे के पास जाएगा. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज बॉक्सिंग. मतलब उसने बॉक्स बनाया और बॉक्स में डेटा को डाल दिया, ऐसा समझो. सो वैल्यू टाइप मतलब बॉक्सिंग क्या कब होगा, जब वैल्यू टाइप इज कन्वर्टेड इनटू रेफरेंस टाइप, दैट इज कॉल्ड एज बॉक्सिंग. प्लीज टेल मी एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है, अब इसका उल्टा, अगर अभी ये ओबीजे है, अगर हमने यहाँ पर इंटीजर y लिखा इज इक्वल टू, अगर हम ओबीजे लिखने जाए, सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट ओबीजे इनटू इंटीजर. दिख रहा है, ओबीजे को हम इंटीजर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. सो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, ये वाला तो अपकास्टिंग था, ये वाला क्या कहलाएगा, इट इज डाउनकास्टिंग. So upcasting is implicit
ये वाला चीज इम्प्लिसिट होता है, खुद से होता है, whereas this part is explicit. तो ये हमको करना पड़ेगा, ऐसे लिखा तो एरर आएगा, दिस विल बी एरर। तो इसको करने के लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा, int y इज इक्वल टू, वी नीड टू कन्वर्ट लाइक दिस, ऐसे करना पड़ेगा। सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो द y वेरिएबल विल बी क्रिएटेड हियर, और ये वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। So from the reference type, we are converting back to the value type. This is known as unboxing. This is all done internally by C Sharp. आ रहा है समझ में? This is one of the common interview questions. Got it? Hello everyone. Clear है? जब? So let me just note it down. When we convert value type to reference type, this will be implicit, और ये upcasting है, हाँ? It is known as boxing. And the other way around, when we convert reference type to value type, it is known as unboxing. I hope everybody is okay with this. समझ में आया सबको? Next, Shreyas had asked me, I think one more student had asked कि अगर अपने पास डेटा सेट में मल्टीपल टेबल्स हैं तो वो कैसे अपडेट करना है. So let me, अच्छा हाँ, मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है, मुझे पता नहीं तुम लोगों को प्रॉब्लम आया कि नहीं. What happened, it was showing me after 2 days your Visual Studio Code is going to expire. तो वेडनेसडे को एक्सपायर हो जाएगा क्योंकि ये फ्री वर्जन है ना. सो बेसिकली इट इज समथिंग पेड. तो ऑनलाइन अगर आप डाउनलोड करते हो तो 1 महीने का आपको चांस मिलता है. तो मैंने दिख रहा है आपको, मैंने अपना सिस्टम डेट थोड़ा पीछे किया है. सो नाउ इट इज अलाउइंग मी 6 days. तो थोड़ा वर्क अराउंड है, टेम्पररीली दिस इज अ वर्क अराउंड दैट यू जस्ट गो फॉर बैक डेट, तो थोड़ा दिन वो चलेगा. हाँ, बाद में हमको लाइसेंस कॉपी चाहिए. Okay, so coming back here. So first of all, how to load multiple tables into the data adapter. तो ये आपको याद है, ये मैंने बताया था, cmd is equal to new sql command. This is the first table and this is the second table. सेमीकोलन के साथ आप दोनों टेबल को ले लो. क्लियर है श्रेयस? ओके. अब उसके बाद ये देखो, ये स्टेटमेंट देखो, da.table_mappings.add, और मैंने ये अपना टेबल का नाम रहता है राइट साइड का. हाँ, एक मिनट रुको. सो यहाँ पे सोर्स टेबल नेम, डेटा सेट टेबल, जो जो एक्चुअल टेबल नेम है वो यहाँ पे आएगा, और इधर अपना हमको जो नाम देना है वो एबीसी कुछ भी नाम हो सकता है. सो दिस इज अवर ईएमपी टेबल एंड दिस इज अवर नेम, सम यूजर फ्रेंडली नेम. वैसे ही मैंने डिपार्टमेंट के लिए डीपीटी लिया है. चलो इसको मैं चेंज करती हूँ, या तो माई ईएमपी ले लेती हूँ और इसको माई डीपीटी ले लेती हूँ. ओके. सो वंस दिस इज डन, तो अब ये सब चेंजेस होने के बाद एक और ऑप्शन है, थोड़ा सा सिंपल ऑप्शन है, ds.tables, एक मिनट, ds.tables. हाँ, ये देखो, ये टेबल नेम जो वहां पे हमने दिया था, दैट इज माई ईएमपी.
और ds डॉट एक्सेप्ट चेंजेस, ये भी एक सिंपल मेथड है जिसके थ्रू हम सारे चेंजेस अपडेट कर पाएंगे। तो इसमें ना मैं एक छोटा सा चेंज और करती हूँ, ds डॉट टेबल्स 0 डॉट कभी अपने को 0 1 2 3 याद नहीं है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। हाँ, सो दिस इज इवन मोर यूजर फ्रेंडली। Okay, so let's go ahead and execute this. So this is our first table. अब इसमें जैसे 16 पे रोहित दिखा रहा है ना, तो उसको अगर मुझे चेंज करना है, तो सैलरी उसका हमने कर दिया, लोकेशन इज सपोज चेन्नई, DID सपोज 102, अपडेट रिकॉर्ड। सो हियर यू मे सी, नहीं एक नंबर को चेंज किया ना मैंने, अजय वाला चेंज हुआ है रिकॉर्ड। नाउ आई एम गोइंग फॉर 1 मिनट, डेटा इसको कनेक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देखो, ये 105 तक है ना, मैंने एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन सेव, लेट मी क्लोज दिस। अब इसको फिर से रन करते हैं हम, नहीं ऐड हुआ है। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी देखते हैं, ये भी नहीं चेंज हुआ, दोनों भी नहीं चेंज हुए। ओहो, बटन। मैंने दो टेस्ट सेट करके देखा, एक ही टेबल में चाहिए। नहीं नहीं, ये होता है। एक मिनट, मैंने बहुत पहले किया था इसलिए मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट आई हैव टेस्टेड इट। रुको, बिल्डर को करके देखते हैं। लेट्स हैव इट लाइक दिस।
मैम ने ये किया था संजू। नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है, मैं चेक करती हूँ एक बार, क्रॉस चेक। हाँ, पर ये होता है इतना तो मुझे पता है, पहले किया था मैंने, फिर अभी मैंने जस्ट ट्राई करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, तो मैं एक बार चेक करती हूँ, ठीक है। मैम वी हैव नॉट सबमिटेड, मैम सबमिट कर दो। ठीक है, जितना किया उतना सबमिट कर दो, कोई बात नहीं है। या आज का एक दिन रुक जाओ ना, मैं आज अभी ये क्लास के बाद ही मैं ट्राई करती हूँ, मैं सेंड करती हूँ तुमको, फिर तुम सबमिट कर दो, ठीक है। थोड़ा मैं एक बार ट्राई करूँगी तो हो जाएगा। ओके, देन यू सबमिट। हमने कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, अभिजीत फिर से कर देना चेंजेस करके। Okay, now let's move ahead with the next topic, that is link queue. This is again a very important and very interesting concept. So it stands for language integrated query. कई लोग इसको लिंक भी प्रोनाउंस करते हैं, लिंक क्यू भी प्रोनाउंस करते हैं, आपकी मर्जी कैसे करना है। So the full form is language integrated query, and as I said, this is a very interesting concept and it is very unique to .NET. So I have not seen this concept in any other technologies as well. So let's understand what is this concept. So let's say I have one minute. Let's say I have a collection of employees. Collection of employee. Collection of employee means what? It might be a kind of list of an employee. हो सकता है मेरे पास एक लिस्ट है किसका, एम्प्लॉयज का, like this. And into this list, I've added a bunch of employees. Say I have a set of employees E1. ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हमने ऐड कर दिए, किसमें, एम्प्लॉय लिस्ट में ऐड कर दिए। नाउ द रिक्वायरमेंट इज गिव मी द लिस्ट ऑफ दोज एम्प्लॉयज whose salary is more than 30,000। समझो ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है। So what should I do? Did you all understand my question? I have to get the list of those employees whose salary is more than 30,000। That is the requirement। तो क्या करना होगा उसके लिए? Come on। मतलब एम्प्लॉय क्लास में अपने पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और सैलरी है। सो यू हैव टू फिल्टर आउट द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज मोर देन 30,000। तो क्या करोगे? इफ कंडीशन विद लूप लगाएंगे।
For each employee in all EMPS, if E dot, assume there is a property called as salary greater than equal to 30,000, then selected, select करना है मतलब क्या, मेरे पास एक selected नाम का So please tell me everybody, are you able to understand this code? Okay. So whenever we are selecting the employees, that employee salary is greater than equal to 30,000. जो है उसको हमने क्या किया, selected वाले उसमें कैटेगरी में हम डालते चले जाएंगे. So these are the set of statements we need to follow. ये जो अप्रोच है जहां पर हम हर स्टेप हम खुद लिखते हैं, हम खुद बताते हैं कि अच्छा आप फॉर लूप चलाओ, अब इफ ब्लॉक लगाओ, अब ऐसा करो, उसको स्टोर करो किसी और में, हम एवरीथिंग वी आर डूइंग. दिस अप्रोच इज नोन एज इम्पेरेटिव अप्रोच. So in this approach, whatever we are doing, we need to do it ourselves. मतलब सब बिजनेस लॉजिक एवरीथिंग वी आर राइटिंग, दैट इज द इम्पेरेटिव अप्रोच. अब मान लो मेरे पास इन एसक्यूएल सर्वर आई हैव अ टेबल कॉल्ड एज एम्प्लॉय, and in that table employee I want to fetch the data of those employees whose salary is greater than 30,000 in SQL. Then how will you write the query, tell me? Just imagine you have an employee table in which there is a column called as salary, and you have to fetch the list of same queries. So you need to fetch the list of employees whose salary is more than 30,000. Then what are you going to write? Come on students, what happened? SQL पे भूल गए ऐसा नहीं है ना? हाँ. Select star from EMP where salary is greater than equal to या greater than 30,000. Yes. Now just compare these two code. ये कोड और ये कोड आप जरा सा कंपेयर करके देखो. काम तो दोनों वही कर रहे हैं ना, सेम टास्क बोथ आर डूइंग, बट द ओवरऑल अप्रोच ऑफ राइटिंग द कोड इज वेरी वेरी डिफरेंट. यहाँ पे आप देखो कोई फॉर लूप नहीं है, सिंपल कोई इफ एल्स ब्लॉक नहीं है. So this is a very very simplified approach of getting the data from the data source. Can we say like this? This type of approach is known as declarative approach. इसे हम क्या कहते हैं? Declarative approach. So what is a declarative approach? We just specify what we want. हमें क्या चाहिए हम सिर्फ उतना बताएंगे. How is not specified. Done internally. वो एसक्यूएल सर्वर खुद करता है ना, खुद ही फॉर लूप लगाता है, कर्सर यूज करता है और फिर एक एक करके रिकॉर्ड फेच करता है. सो दैट पार्ट इज डन इंटरनली, वी आर नॉट डूइंग इट. दैट इज द डिक्लेरेटिव अप्रोच. Everybody understood what is imperative approach and what is a declarative approach? When we are writing the entire for loop, everything we are writing, that is the imperative approach. But when we only specify simple one liner query, क्या हमें चाहिए सिर्फ वो हम मेंशन कर देते हैं, that is called as a declarative approach.
सो इट इज प्रीटी ऑब्वियस दैट व्हेन आई आस्क यू कौन सा अप्रोच ज्यादा आपको बेटर लग रहा है, अगर आपको सिलेक्ट करने को कहा जाए तो कौन सा अप्रोच आप यूज करोगे? द सेकेंड वन। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। बट अगर आप सी शार्प यूज कर रहे हो तो वो तो अप्रोच आप नहीं लगा सकते, करेक्ट है ना? बिकॉज दैट इज स्पेसिफिक टू एसक्यूएल सर्वर, तो तुम एसक्यूएल सर्वर में ही वो लगा सकते हो। पर अगर मेरे पास एरे लिस्ट में डेटा है, लिस्ट में डेटा है, स्टैक में है, क्यू में है, डिक्शनरी में है, तो ये अप्रोच तो नहीं चलेगा। अंडरस्टूड? सो इवन दो इट इज अ वेरी अट्रैक्टिव अप्रोच, बहुत हमें अच्छा लग रहा है, मजे की चीज है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते। डन? समझ में आ गया? सो व्हाट वी शुड डू, उसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। सो first problem what we observe is we cannot use declarative approach in C sharp programming। अभी तक जो अपने को नॉलेज है उसके हिसाब से तो एक ये बात अपने को पता है, वो एसक्यूएल सर्वर का पार्ट है। नेक्स्ट थिंग, whenever we want to fetch the information, or we can say we want to fetch data, मुझे डेटा फेच करना है, डेटा कहाँ से आ सकता है? So there are different sources of data. तो कौन कौन से डेटा सोर्सेज हो सकते हैं? डेटा कैन कम फ्रॉम, वी कैन से ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब आप ऐसे समझ लो कलेक्शन। इट कैन बी स्टैक, इट कैन बी लिस्ट, इट कैन बी क्यू, इट कैन बी डिक्शनरी। किसी, वो भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है ना, एरे में हो सकता है डेटा। सो कैन वी से दिस इज अ कंटेनर ऑफ द डेटा, यहाँ से अपने को डेटा मिल सकता है, कैन वी से लाइक दिस? डेटा कैन ऑल्सो कम फ्रॉम some other sources like database, डेटाबेस में से भी हमको डेटा मिल सकता है। फिर और भी टेक्निक्स है लाइक XML, वी हैव नॉट स्टडीड, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये भी एक सोर्स ऑफ डेटा होता है। लेट मी जस्ट शो यू वन सैम्पल XML फाइल, सैम्पल XML फाइल। लुक एट दिस एवरीवन, दिखाई दे रहा है? सो कैटलॉग, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैटलॉग। CD, टाइटल, artist, country, company, price, year. So in this format the data is present. दिख रहा है आपको? तो टैग्स के बीच में डेटा डाला जाता है। This is also a collection of information, right? So it is data in the form of XML. तो डेटा किसी तो एक सोर्स में हो सकता है। It might be present, कहाँ गया? It might be present in the form of object, or it might be in the database, or it might be XML, और कुछ भी अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं। अब अगर मुझे इन सोर्सेज में से डेटा लेना है, मुझे चाहिए डेटा, ठीक है, मुझे किस में से चाहिए? कलेक्शन में से चाहिए। सो इफ आई डोंट नो द कलेक्शन टॉपिक, कैन आई फेच द डेटा फ्रॉम द कलेक्शंस? अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया कलेक्शंस और मैं बोलूँ नहीं नहीं जाओ मेरे को डेटा लेकर आओ कलेक्शंस में से, तो तुम मुझे क्या बोलोगे? मैम आपने पढ़ाया नहीं, बोलोगे ना, मैम हमको नहीं आता कलेक्शंस, ये तो आपने हमको पढ़ाया नहीं। फिर मैं फिर मैं बोलूँगी अरे यार पढ़ाया नहीं तो चलो फिर कलेक्शंस पढ़ते हैं। फिर मैं आपको पूरा सिखाऊंगी, हाँ एरे लिस्ट ऐसे बनाते हैं, लिस्ट ऐसे बनाते हैं, डिक्शनरी ऐसे बनाते हैं, हैश टेबल ऐसे बनाते हैं। आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग। ओके? फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है अब डेटाबेस में से डेटा लेके आओ। तो फिर तुम बोलोगे अरे मैम डेटाबेस सिखाओ ना हमको। तो पहले मैं आपको एसक्यूएल सर्वर सिखाऊंगी, फिर उसके बाद एसक्यूएल सर्वर से डेटा कैसे लेते हैं ADO.NET वो भी सिखाऊंगी, तब तो तुम डेटा फेच कर पाओगे। फिर तीसरा आता है एक्सएमएल। तो एक्सएमएल भी भाई, एक्सएमएल फाइल बनाना वो तो चलो एक बार सिंपल है। एक्सएमएल फाइल तो ये देख के तुमको समझ में आ जाएगा, हाँ ऐसे बनाया जाता है। पर उसको रीड कैसे करना है? तो उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है, कैसे एक्सएमएल डेटा को रीड करेंगे, उसका टैग कैसे रीड करेंगे, उसके अंदर की वैल्यू कैसे रीड करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टीच यू, देन ओनली यू विल बी एबल टू फेच द डेटा, करेक्ट?
और कल को फ्यूचर में नया वर्जन इंट्रोड्यूस होगा तो कोई और नया डेटा सोर्स भी तो ऐड हो जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो नया डेटा सोर्स आपको सिखाना पड़ेगा, तब तो आप उसमें से डेटा फेच कर पाओगे। So we want to fetch the data. Data might be present in various resources, various formats. Then we need to learn each and every approach in order to fetch the data. Do you agree with that? इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको पता नहीं है तो आप उस पर काम नहीं कर सकते, उसमें से डेटा फेच नहीं कर सकते। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। 10 तरीके से डेटा मिल सकता है, तो 10 तरीके आपको आने चाहिए ना, फिर तो आप उस पर काम कर पाओगे। सो प्रॉब्लम व्हाट वी आर गोइंग टू फेस इज data might be present in various resources. Data might be present in various resources. So we need to learn each component to extract the information. हर कंपोनेंट्स में डेटा एक्सट्रैक्ट करने का अपने को पता रहना चाहिए, तभी हम उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हर बार नया नया चीज मुझे सीखना पड़ेगा, बिना उसके हम डेटा को फेच नहीं कर पाएंगे। दैट इज अनदर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। तो कब तक लर्निंग करते ही रहेंगे? तुम बोलोगे मैम अभी मुझे 10 साल हो गया फिर भी अभी भी नया नया सीखना ही पड़ रहा है, ये तो थोड़ी अच्छी बात नहीं है। दिस इज वेयर लिंक यू कम्स इन। लिंक क्या बोलता है? व्हाट लिंक सेज, now whatever C sharp we have done till now, can we say C sharp follows imperative model? ये वाला मॉडल फॉलो करता है C sharp. So what link does, it brings declarative model in, sorry, declarative approach in imperative model. That is the first point. मतलब अब लिंक यूज करेंगे हम, तो हम अपने प्रोग्राम में जो कोड है वो कैसा लिख पाएंगे? डिक्लेरेटिव अप्रोच यूज करके हम कोड लिख पाएंगे। सो वी आर गोइंग टू नाउ राइट समथिंग लाइक दिस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी टाइप्स। ऐसा कोड हम लिखने वाले हैं। देयर विल नॉट बी एनी फॉर लूप, देयर विल नॉट बी एनी इफ एल्स ब्लॉक। सो इट इज इंटरेस्टिंग। जो अपने को अच्छा लग रहा था सेकेंड अप्रोच, वो अब अपने को सी शार्प में मिल जाएगा। इतने पैसे में ये भी वो भी ऐसा टाइप का हो गया है ना। सो वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी बिग प्लस पॉइंट हियर। Second important point, this is the first important point. Second important point is the approach of using data source different data source is same irrespective of different data sources. डेटा सोर्स कुछ भी होने दो, बट जो अप्रोच हम यूज करेंगे, कलेक्शंस में भी वही लिखना है, डेटाबेस में भी वही लिखना है, एक्सएमएल में भी वही लिखना है। मतलब कल को नया डेटा सोर्स आएगा तो वो बिना सीखे भी तुम उसको यूज कर पाओगे। सो डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस? वही अप्रोच आपको कलेक्शन में यूज करना है, वही अप्रोच आपको डेटाबेस में यूज करना है, वही अप्रोच आपको एक्सएमएल। सो वेरी यूनिफॉर्म अप्रोच ऑफ एक्सेसिंग द डेटा वी आर गोइंग टू लर्न। एक ही टेक्निक से कोई भी डेटा सोर्स ये हटा के ये हटा के ये लगा दो, सब में वही हमको काम करेगा। इंटरेस्टिंग, एवरीबॉडी क्लियर है? नाउ इफ वी वांट टू यूज दिस कॉन्सेप्ट
The only prerequisite is जो भी आप collection use कर रहे हो, it must implement IEnumerable or iQueryable interface. So already C Sharp has, every collection is already implementing IEnumerable interface. IEnumerable रहता है ना, तभी for each loop लगता है. तो जिसके ऊपर भी आप for each loop लगा सकते हो, वो IEnumerable हो जाता है. And iQueryable. ये दो चीजों में से कोई भी एक implement हो रहा है, then we can apply link concept. यहाँ तक समझ में आया आपको? जो भी डेटा सोर्स आप ले रहे हो, चाहे वो कलेक्शन हो, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो XML हो, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए किससे? आई न्यूमरेबल से या आई क्वेरिएबल से. समझो वो नहीं है ऐसा, समझो वो नहीं इम्प्लीमेंट होता है, देन वी हैव अ टेक्निक ऑफ मेकिंग इट आई न्यूमरेबल और आई क्वेरिएबल. मतलब उसमें कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे हम उसको बदल भी सकते हैं. बदल देंगे तो वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, फिर आप उस पर लिंक क्वेरी अप्लाई कर सकते हो. So till this point, have you understood whatever I am saying? If yes, please type U for understood. क्या करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है, वो समझ में आ रहा है? We are going to apply the declarative concept in our imperative model, and we are going to learn a uniform approach of accessing the data. Right? So let's get started now. So I'm going to use the console application. अच्छा, लिंक जो है वो इनबिल्ट लाइब्रेरी है, तो अपने प्रोजेक्ट का नाम लिंक ऐसे मत रखना, कुछ तो अलग नाम रख देना. सो लेट मी हैव इट एज माय लिंक डेमो. इस नाम से मैं बना रही हूँ. सो बेसिकली आई वांट टू टीच यू द कॉन्सेप्ट, राइट, इसलिए मैं उसको उस कंसोल एप्लीकेशन पे डाल रही हूँ. So by default, when you create a project, this library is already added. Namespace is already there using system.link. तो अब कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको. So public static void main. So first of all, I would create maybe an array of integers. So I have one array here where the size is 5. Now what I want to do is I want to fetch all the even numbers and create a new array जिसमें वो सारे even numbers रहेंगे. So for this I will have to create another one that is selected new int. Again let me have it 5. बट अभी मैं उसको ब्लैंक रख रही हूँ क्योंकि सारे भी इवन नंबर्स हो सकते हैं ना, तो मैंने जस्ट उसको ऐसे रखा है. नाउ व्हाट आई विल डू, फॉर ईच integer x in arr, if x mod 2 equal to 0, एरे में शायद ये नहीं है, ऐड मेथड नहीं है, so I will have to use index facility. So once this is done, now we can apply for each
integer x in selected console.writeLine x. This is actually imperative approach only. So first I am writing that way, then we will convert it into the declarative approach. ओके तो लास्ट वाले एलिमेंट 0 0 है क्योंकि 3 ही थे इवन नंबर्स तो वो आ गए. ठीक है, डन एवरीवन, क्लियर है? अब ये जो अप्रोच था डिक्लेरेटिव वाला, ये अपने को चेंज करना है. सॉरी, दिस इज इम्पेरेटिव अप्रोच, वी वांट टू चेंज इट इनटू डिक्लेरेटिव अप्रोच. अब ये करना कैसे है, ये वाला जो अपना मेन कोड है इसको ही लेकर समझते हैं. So if you observe this query, there are a couple of things that we need to note down. एक है कि हम डेटा किस में से फेच कर रहे हैं. So we are trying to fetch the data from ARR. दूसरा है हमारा कंडीशन. So this is the condition we have specified. So let me write it as this is data source. This is the condition we are writing. और कंडीशन के बेस पे जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये वाला जो वेरिएबल है, दिस इज द वन हु हैज, ये विन हो रहा है ना, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको हम अब रिजल्ट में ऐड कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट आई शुड राइट हियर, इसको क्या बोलूं मैं, सिलेक्टेड. ये सिलेक्ट हुआ ना क्राइटेरिया में, अभी तुम इंटरव्यू दोगे जो लोग क्लियर करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना? तो तुम सब लोग मेरे डेटा सोर्स हो जाओगे. उन्होंने जो इंटरव्यू लिया या जो भी उनका प्रोसेस रहेगा वो तुम्हारा फिल्टरिंग कंडीशन होगा. उसमें से जो लोग सेलेक्ट होंगे वो सिलेक्टेड की कैटेगरी में जाएंगे. ऐसे ही चलेगा एल्गोरिदम अपना. सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट विल बी देयर इन द पिक्चर. अब इसको लिखना कैसे है लिंक में, फ्रॉम एक्स इन डेटा सोर्स, SOURC. जैसे फॉर एक्स इन, फॉर ईच एक्स इन ओबीजे ऐसा हम लोग लिखते हैं ना, वैसे फ्रॉम एक्स इन डेटा सोर्स ऐसा लिखना है. मतलब आप इस लाइन को ऐसे समझ लो कि इंटरनली एक फॉर लूप चल रहा है डेटा सोर्स के ऊपर, एंड वन बाय वन द एलिमेंट्स आर बीइंग फेच्ड एंड दे आर गेटिंग स्टोर्ड इन द वेरिएबल एक्स. देन we have the where condition, where, and you give the condition here. तो वो आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, पर वो कंडीशन किस पे अप्लाई हो रही है, एक्स पे अप्लाई हो रही है. अगर वो ट्रू आएगा कंडीशन, तो हम लोगों को किसको सिलेक्ट करना है, एक्स को सिलेक्ट करना है. तो थोड़ा सा इसमें कीवर्ड्स वही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी जैसा. सो दीज आर द कीवर्ड्स दैट वी हैव टू यूज. सो important keywords are from, where and select. One more important keyword is there, that is a where keyword. इस पे मैं आऊंगी बाद में, पहले तो यहाँ तक समझ लो. So please do not get confused or mixed up with the approach that we have been using here in SQL Server. Select star from EMP. इसको और इसको मिक्स मत करो. चलो इसको मैं, इसको भी मिक्स, चलो क्या बोलना चाहिए, मिक्स करने से अच्छा रीनेम कॉमा सैलरी. देखो ये तीन चीजें हैं. जब अपन फॉर फ्रॉम लिखते हैं, सो फ्रॉम ईएमपी, सो फ्रॉम डेटा सोर्स, ये जो लाइन है ये अभी मिडिल में आती है, ये यहाँ पे सबसे पहले आती है. सो फ्रॉम कीवर्ड इज फर्स्ट, फिर फिर आ जाता है वेयर. ये जो वेयर पार्ट है वो बीच बीच में आता है. फाइनली जो कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है उसको अपने को सिलेक्ट करना है, वो थर्ड नंबर पे आता है. सो दिस पार्ट इज रिटन इन अ डिफरेंट वे ओवर हियर, द सीक्वेंस इज मॉडिफाइड.
पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा है? फ्रॉम पहले लिखना है, और कैसे लिखना है? फ्रॉम एक्स इन डेटा सोर्स। सो इसको तुम थोड़ा सा कंपेयर करो किसके साथ? फॉर ईच लूप के साथ। फॉर ईच से इंटीजर एक्स इन समथिंग ARR, इसके साथ कंपेयर करो। ये लाइन हमने यहाँ पर लिखी है, बट यहाँ पर फ्रॉम लिखा है। तो वो एक्चुअली क्या करेगा? फॉर लूप चलाएगा और एक एक करके वैल्यू किस में आते जाएगी? एक्स पे। उस एक्स पे हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो एक्स सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट होने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम सेव करेंगे किसी वेरिएबल में। So let me write here selected is equal to, and this is the query we have to run. So let me just flip to Visual Studio to understand the things better. So let me change it to main one. So let me remove all these things. वो देखो आई न्यूमरेबल नहीं है, इसलिए वो नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है। Dot as enumerable. सो एज आई हैड टोल्ड यू, अगर उसमें आई न्यूमरेबल, अभी तुमको पता चला क्या है? एरर आ रहा था एक, ध्यान से देखो फिर से। सो इफ आई ट्राई टू अप्लाई दिस, इसको भी हटा दो। मैंने कुछ ऐसा लिखा था ना। सो इट वाज रेजिंग एन एरर, तो माउस अपना लेके आओ और उस एरर को ध्यान से पढ़ो। के नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइम सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरेट आई न्यूमरेबल इन टू इंट। अच्छा, एक्चुअली वो रिटर्न टाइप में एरर आ रहा है, इधर नहीं प्रॉब्लम है। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एरर गया, मतलब नहीं सॉरी, ये चल जा रहा है। इधर रिटर्न टाइप में एरर आ रहा था, तो रिटर्न टाइप वो बोल रहा था कि एरे नहीं दे रहा हूं मैं, तो तुम एरे में मत स्टोर करो। आई एम रिटर्निंग समथिंग विच इज आई इन्यूमरेबल। तो तुमको अगर डाउट है ना, तो तुम सीधे सीधे आई इन्यूमरेबल ऐसे लिख दो, एंड यू कैन सी द स्क्वायर ब्रैकेट। तो मुझे कौन सा चाहिए? इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए। सो दैट विल रिजॉल्व द इशू। सो लेट्स ड्रिल दिस डाउन फर्दर, तो थोड़ा सा और हम समझते हैं। अभी आप देखो, फ्रॉम एक्स इन ARR। सो व्हाट इज दिस ARR? दिस ARR मीन्स दिस कलेक्शन। तो मैंने आपको क्या समझाया कि ये चीज को आपको क्या समझना है कि दैट इज समथिंग, देयर इज समथिंग लाइक अ फॉर लूप गोइंग ऑन। फॉर लूप चल रहा है, एक एक एलिमेंट आ रहा है, और एक एक एलिमेंट किस में जा रहा है? एक्स में जा रहा है। सो एक्स इज हैविंग 12, देन 45, देन 23, देन 44, लाइक दिस इट इज हैविंग। अंडरस्टूड? वेयर एक्स मॉड टू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वो जो एक्स आपको मिला, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा मिला? 12। 12 मॉड टू इक्वल टू 0, यस, सेलेक्ट एक्स। तो इसको सेलेक्ट किया, किसको? इसको। फिर लूप चलेगा 45, 45 इज नॉट सेलेक्टेड, 23 इज नॉट सेलेक्टेड, 44 सेलेक्ट किया, 78 सेलेक्ट किया। ये जो सेलेक्टेड है, मतलब दिस क्वेरी इज गोइंग टू रिटर्न दिस कलेक्शन, ये ग्रुप को रिटर्न करेगा। सो व्हाट इट इज रिटर्निंग इज आई न्यूमरेबल, इसलिए वो बोल रहा है आई न्यूमरेबल में स्टोर करो। तो हमने यहाँ पर आई न्यूमरेबल बना दिया और उसमें इसको स्टोर कर दिया। ठीक है? सो व्हाट इज दिस सेलेक्टेड? इट इज implementing आई न्यूमरेबल इंटरफेस।
तो इस पे हम फॉर लूप चला सकते हैं, फॉर लूप चलाएंगे तो ये जो सिलेक्टेड एलिमेंट्स है वो अपने को दिखाई देंगे. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस पार्ट. So this is my first example of link expression. So did you all understand this example? पहला example आपको समझ में आया है तो S for समझ में आया टाइप करो. And do you find it is interesting? कुछ मजा आ रहा है? एकदम से नया कुछ सीखने को मिल रहा है. कोड एकदम शॉर्ट हो गया देखो. फॉर लूप नहीं है, इफ ब्लॉक नहीं है, स्ट्रेट अवे वेयर कंडीशन है. हाँ, और एक बात, वेयर कंडीशन अगर एसक्यूएल में लिखने जाएंगे तो एसक्यूएल का सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हमने तो इतनी मेहनत से सी शार्प सीखा है. सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अब आप सी शार्प का सिंटैक्स लगाकर एसक्यूएल की क्वेरी लिख रहे हो, ऐसा इसका मीनिंग हो गया. Whatever you have learned in C sharp, that power you can apply over here. दिख रहा है ना? ये सिंटैक्स आप MySQL में यूज करते हो क्या? दिस इज प्योरली सी शार्प सिंटैक्स, राइट? तो अभी पूरा सी शार्प का ही सिंटैक्स लगाकर हम एसक्यूएल जैसा क्वेरी लिख रहे हैं. तो ये जो इतना सारा हमने फॉर ईच लूप लगाया था, उसके बदले ये इतना शॉर्ट में कोड हो रहा है. अंडरस्टूड? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? लेट मी टेक अनदर एग्जांपल नाउ. थोड़े से और एग्जांपल्स लेंगे हम, so that you become more and more comfortable. What is IEnumerable? एक मिनट, हाँ बता रही हूँ. एक ही मिनट है, मैं थोड़ा पानी पी के आ रही हूँ. ओके, सो मनोज हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन, व्हाट इज आई इन्यूमरेबल. तो अभी आई इन्यूमरेबल लिखा है, मतलब पहले तुम मुझे बताओ वो क्या है, क्लास है या इंटरफेस है? इट्स एन इंटरफेस, राइट? तो वो इंटरफेस है, मतलब उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं. इन्यूमरेबल, उसका एक्चुअल कोड दिखता है कि नहीं पता नहीं, देखती हूँ. हाँ, उसके अंदर एक मेथड है दैट इज गेट इन्यूमरेटर.
एज पैरेलल, एज क्वेरिएबल, कुछ कुछ है उसके अंदर मेथड्स. सो बेसिकली द आइडिया इज कि कोई भी जो कलेक्शन होता है, जैसे कि लिस्ट हो गया, एरे हो गया, दे आर ऑल इनहेरिटेड फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल वी हैव लिस्ट, then we have a dictionary, then we have array. These are all implementing the common interface that is IEnumerable. Understood? ये सब इनहेरिट हुए हैं किससे? IEnumerable से. ये सब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. इट इज लाइक दिस. एंड सिंस दे आर इम्प्लीमेंटिंग IEnumerable, इसीलिए हम उस पर फॉर ईच लूप लगा सकते हैं. सो फॉर ईच लूप लगाना मतलब क्या? उसको हर एक को इटरेट करना और बोलना कि चलो नेक्स्ट एलिमेंट दे दो, चलो नेक्स्ट एलिमेंट दे दो. So that functionality we get because it is implementing the IEnumerable interface. So something which will allow us to iterate. Iterate करना मतलब हर एक एलिमेंट को विजिट करने की फैसिलिटी हमको मिलती है using the IEnumerable interface. Got it? तो जो भी अपने पास कलेक्शन रहेगा ना, उस पे यदि आप फॉर लूप लगा सकते हो, फॉर ईच लूप लगा सकते हो, इटरेट कर सकते हो, तो लिंक क्वेरी अप्लाई हो सकती है. मतलब तुम उस पे फॉर लगा पा रहे हो ना, तो तुम फिर लिंक भी लगा सकते हो. ऐसा कॉन्सेप्ट है. इसलिए वो बोल रहा है कि आई न्यूमरेबल तो होना ही चाहिए, तभी हम उस पर कर सकते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू डेटाबेस, तो डेटाबेस में आई न्यूमरेबल नहीं होता है, फिर वो आई क्वेरीएबल कहलाता है. यू कैन क्वेरी, यू कैन राइट सेलेक्ट स्टार, so that is called as iQueryable interface. So basically iQueryable is applicable to databases, और जो नॉर्मल कलेक्शंस वगैरह रहेंगे वो IEnumerable होते हैं. Is that okay everyone? Okay. Now coming back over here. So please observe this what I have done. This for another. So we have created one list. Remember square bracket generic concept. So I have created one list of array, strings, and I've added a bunch of strings over here. अब मुझे वो सारे स्ट्रिंग्स दे दो, वो सारे नाम दे दो जो 5 कैरेक्टर्स के हैं. ओके, सो व्हाट इज माय क्वेरी हियर? गिव, सॉरी, गिव मी a list of those names which have 5 characters. मतलब लेंथ उसका कितना है? 5 कैरेक्टर्स का है, वो दे दो. तो अभी ये हटा देते हैं हम लोग. अभी अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है वो फॉलो करना है. सो फ्रॉम x in ARR. ये लाइन आपको समझ में आ रही है क्या? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस लाइन? सो ऑल दिमाग में क्या बोलना है? फॉर ईच स्ट्रिंग x in ARR, ऐसे उसको रीड करो, है ना? सो हाउ यू आर गोइंग टू रीड इट? फॉर ईच स्ट्रिंग s in ARR. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रीड इट. मतलब एक एक करके मुझे स्ट्रिंग देते जाओ. Now comes the where condition. So where? So what is the condition we are giving here? X dot length is equal to 5. Can we write here select X? Does that make sense everyone? अब ये कुछ तो रिटर्न करेगा. This is going to return something. So what it is going to return? तो मैं ये लिखकर ट्राई करती हूँ, तो एरर देगा तो फिर चेंज करेंगे हम, है ना? ये इसका लिखने का फॉर्मेट ऐसे है, हाँ, वो एक के नीचे एक जाता है. ये सब एक लाइन में लिखा जाता है ऐसे. What it is showing me error. Cannot. हाँ, फिर से वही आई न्यूमरेबल दिखा रहा है, तो इसको क्या करोगे आप? चेंज कर दो, आई न्यूमरेबल में चेंज कर दो. ऑल द एरर्स डिसअपियर. तो एक अप्रोच हमने यहाँ सीखा, वही अप्रोच हम सेम टू सेम यहाँ लगा रहे हैं. दिख रहा है आपको?
Only the condition part has changed, but exactly same code I have written again. Do you all agree with this? Now let me execute this. That is the beauty of link. एक तरीका बस ये सीख गए ना तुम, अब उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो. So we got the list of those names which start with. और भी इसमें है फैसिलिटीज. So x dot, अब ये स्ट्रिंग का पावर मिल गया आपको, कंटेन्स. तो समझो मुझे जिसके जिसके नाम में एस आता है वो सारे लोग चाहिए. तो इन लोगों के नाम में एस आता है. सो दोज नेम्स विल बी लिस्टेड हियर. संजू नहीं आया क्या? हाँ, संजू क्यों नहीं आया? एस कैपिटल लिखा है ना संजू में, इसलिए. डॉट टू, हाँ, उसमें आप क्या करो, एक्स डॉट टू लोअर. हाँ, हैप्पी, सब लोग आ गए. ठीक है. यू गेट द पावर, यू नो. अभी आप स्ट्रिंग का पावर मिल गया ना, अब उसको कैसे भी लिखते जाओ आप. एवरीबडी इज ओके विद दिस एग्जाम्पल? नाउ लेट्स एनहांस इट फर्दर. थोड़ा सा और उसको कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, we'll add a new item, that is our student class, या फिर एम्प्लॉय क्लास एक ऐड करते हैं. ये कंस्ट्रक्टर लिखने का ना ये शॉर्टकट तरीका है, CTOR. ऐसे लिखो तो कंस्ट्रक्टर का स्केलेटन लिख के आ जाता है. ऐसे प्रॉपर्टी का भी कुछ तो था, अभी मुझे याद नहीं है. कुछ तो ऐसे लग रहा है मुझे शॉर्टकट था. टू ऐड प्रॉपर्टी, पब्लिक इंट आईडी. हाँ, अब इसको मुझे रीड ओनली बनाना है. मतलब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ कोई भी एम्प्लॉय आईडी को रीड कर पाए, सेट ना कर पाए. तो आप उसको सिर्फ गेट दे दो, सेट मत देखो. तो अगर सेट नहीं दिया, सो नाउ इट विल बिकम अ रीड ओनली प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड? मैं नहीं चाहती कोई आईडी को मॉडिफाई कर पाए, सो आई रिमूव द सेट पार्ट. नाउ सिमिलरली लेट्स हैव public string name, return name.
ओके, तो आई हैव एडेड गेटर्स एंड सेटर्स फॉर ऑल, और एक अपन टू स्ट्रिंग मेथड भी डाल के रख देते हैं. The other day I was conducting an interview, okay, with one lady. She is from USA and she has 7+ years of experience, okay, as a data scientist. I was asking her about function overriding and the answer she gave, मुझे तो ऐसे चक्कर ही आने लगे. When a class inherits from other class, this is overriding, she said. I tried to ask her again and again, is that's it? Yes, again she said, हाँ, एक क्लास से दूसरे क्लास को जब हम इनहेरिट करते हैं ना, so it is overriding only. So I was like surprised कि लोगों को 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर भी लोगों का बेस कॉन्सेप्ट इतना वीक रहता है. So small questions I was asking and she was getting very much confused. So मतलब थोड़ा सा ऐसे लग रहा था बाप रे कैसे कंडीशन में है. वो सरप्राइज. तो तुम लोग ऐसे मत बनो, है ना. फर्स्ट मीट का नाम रोशन करो. लोग को पूछना चाहिए तुमने कहाँ से कोर्स किया. हम भी जाके करते हैं, वर्किंग एम्प्लॉयज भी ऐसे पूछेंगे तुमसे. ठीक है. Okay, so we have defined one employee class. Everybody is okay with this employee class. For every private data member, we have added some properties, default and parameterized constructor, and a two-string method. That is more than sufficient for us. Now let's move ahead. तो ये हो गया अपना main 2, ये हो गया main 3. Yes. So now again, I'm going to have a list of employees. I have to add an employee object. So directly I am writing like this. Okay, so we have a bunch of employees here. अब मैं आपसे पूछती हूँ. चलो मैं पहले ये वाला कोड यहाँ से पहले कॉपी कर लेती हूँ. Let's say again I'm asking you, give me the list of those employees whose salary is above 30,000. So the query that we need to generate here is, give me the list of employees whose salary
is more than 30,000. So can you tell me the changes here? लाइन नंबर भी बोलते जाओ और चेंजेस भी बताते जाओ. INnumerable employee. Okay. Yes. Next. हो गया खत्म. From X in all EMP. Okay. Yes. Where X dot. Yes. So what does this X represent? Can you tell me? वेरी गुड. इट्स एन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. तो एक्स डॉट किया तो वो प्रॉपर्टी दिखाएगा हमको. प्रॉपर्टी बनाया ना अपन ने. बेसिक इज ग्रेटर देन 30,000. सेलेक्ट दैट एम्प्लॉय. हो गया काम. जय सिया राम. समझ में आ रहा है आपको? एक टेक्निक सीखा तो दूसरा एकदम आसानी से हम अप्लाई कर पा रहे हैं खुद से. सो कंसोल डॉट राइट लाइन ईएनपी लिखो आप. तो टू स्ट्रिंग मेथड अपन ने ओवरराइड किया है तो वो हो ही जाएगा वैसे भी. So we got these employees who earn more than 30,000. So everybody okay with this example? Now sometimes as I told you that we are not very sure, right? कि ये return. हाँ, अभी तो अगर आपने select X बोला है, select X बोला मतलब वो क्या return कर रहा है? Can I say it is going to return a collection of employees? इसलिए हमने यहाँ पर INnumerable EMP लिखा. अगर आप पीछे जाओगे तो यहाँ पर select X लिखा है. तो what does this X represent now? It's a string. So we have to write INnumerable string here. इस केस में वो रिटर्न कर रहा था इंटीजर, इसलिए हमने इंटीजर लिखा. मतलब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा टाइप है. मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, ऐसे मत बताओ मेरे को. सो सी शार्प से अरे बाबा तुम मत टेंशन लो, तुम एक काम करो, तुम VAR कीवर्ड लिख दो बस. वो डेटा टाइप का भी टेंशन ना मैं ही संभाल लूंगा. तुम मत लिखो, तुम इतना भी कष्ट मत करो, तुम अपना बिजनेस लॉजिक पे ध्यान दो. So you are free from the burden of remembering these things. जहां जहां तुमको डेटा टाइप कुछ समझ में नहीं आता है सिर्फ var लिख दो. So don't you think this is something really beautiful? बोलते मैं खुद लिख दूंगा, मैं तुम्हारे क्वेरी के हिसाब से मैं देख लूंगा कि तुम इंटीजर जनरेट कर रहे हो या कैरेक्टर जनरेट कर रहे हो या एम्प्लॉय जनरेट कर रहे हो. तो अकॉर्डिंगली आई विल सब्स्टिट्यूट द डेटा टाइप एट कंपाइल टाइम. Okay, I will do the substitution at compile time on my own based on the query that you are going to write. तो वो सब काम मैं खुद कर लूंगा. So we will still get the result, but now we don't really have to bother about writing the data type and all. तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि समझो मैंने select x नहीं लिखा, select e dot basic लिख दिया. हाँ, तो यहाँ पे भी ये एरर आना शुरू हो गया. इसको भी var लिख दो ना, खत्म हो गई बात. var x ऐसे लिख दो. So now your code is completely independent of the data type. अभी ये basic के लिए भी work करेगा. You can see basic salaries we got. अब तुमको basic नहीं चाहिए, वो employees के नाम ले लो आप. Name. So everything will get modified based on the data type that we are going to use now. अभी ये string के लिए काम करेगा. So that is the power of link. So much flexibility we achieved. Understood?
So I hope everyone understood this session. Okay. So let's stop here for today. अब ये डेटाबेस से भी हम लोग इसको यूज करेंगे, वो कल सिखाती हूँ। और अभी मैं वो तुम्हारा जो था 2 टेबल वाला, वो अभी मैं करके सेंड करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर। चलो, बाय एवरीवन।